Thank you, Brother Christy, and the wonderful team. Pastor, we can just, um, we need to thank, the Chennai team. They also made a lot of sacrifices and come here to be here with you all. और मैं आज चेन्नई के सारे टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पे आने के लिए वो लोग बहुत सारे बलिदान किए हैं, मतलब अपना पैसा, अपना समय, अपना जॉब को भी साइड में रख के ये प्रभु के सहभागिता में आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो लोग भी ये समय बिताने के लिए आए, इसलिए हमारे चेन्नई टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Man, Brother Christy is working in a very good company in Chennai. Brother Joshua is working, Sister Sandhya is working, Sister Carolyn is working. I am working and pastoring, but we all wanted to come and be a part of this wonderful 13th anniversary. We need to thank the team who have come along with us. मैं Thank you. धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ब्रदर क्रिस्टी जो है वो चेन्नई में एक अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं, जोशुआ भी काम करते हैं, सिस्टर कैरोलिन भी काम करते हैं, मैं काम करता हूँ और पास्टरिंग भी करता हूँ। हम सब अपने जॉब को छोड़ के थोड़ा साइड में रख के आपके इस 13वां एनिवर्सरी में आपके साथ खुशियां मनाने के लिए हम आए। Amen. Amen. Pastor said he learned the song, yesterday's song. I just want to sing it once again before we read the word of the Lord. Yes, Amen. yes. Amen. He knows the song. He can sing along with me. Araganavar, Yeshu, Araganavar. Those who come new today, you can just join with me. Araganavar, Yeshu, Araganavar. Inimai, Inimayanavar, Yeshu, Inimaya. Nicely, your face should be like, oh, it's so sweet. आपका चेहरा भी होना चाहिए कि कितना मीठा है यीशु। आपके चेहरे में वो खुशियां दिखनी चाहिए। मीठा ऐसे नहीं. मीठा ऐसे दुखी में नहीं होना चाहिए। And also this one. ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? We should do it in happiness and style, and because we serve a very wonderful God. स्टाइल के साथ Amen. He's such a beautiful God. Amen. He's a sweet God. Amen. Let's do it again. Okay, everybody together. Araganavar, Yesu, Araganavar. Ho ho, Araganavar, Yesu, Araganavar. Inimai, Inimayanavar, Yesu, Inimayanavar. Oh, Inimayanavar, Yesu, Inimayan. Ho ho ho, Araganavar. Yesu Araganavar. One more time. Araganavar, Yesu Araganavar. Last time, everyone. Inimayanavar, Yesu Inimayanavar. Inimayanavar, Yesu Inimayanavar. What a beautiful God we serve. Hallelujah. Praise God. सुंदर परमेश्वर हमारा है। If you have a Bible, turn to the book of Proverbs, 24th chapter, verses 16. अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल में निकाल सकते हैं नीति वचन का Proverbs. I want somebody to read. I'm going to not take much time, but if you listen to this message, God is going to give another restoration in our lives. मैं चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे हो तो ये वचन को सुनो और पढ़ो और परमेश्वर आपको एक Restoration. परमेश्वर आपको फिर से भरपूर कर दे, फिर से पूरा कर दे, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। Psalms, Proverbs 24:16, a very famous verse. I want Pastor to read it in Hindi. प्रोवर्ब्स जो नीति वचन है 24:16 वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूं कि पास्टर उसको पढ़ ले हिंदी में। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी 8 उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। Praise the Lord. Amen. Everybody, I want you to listen to the message just for 40 minutes. I won't take much time. May God will bless you. If a righteous man falls 7 times, मैं चाहता हूं कि हम सब ध्यान दें और बाइबल ये बोलता है कि अगर एक धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरे तो भी 7 times he falls, 7 बार गिरे, Bible says he'll raise up again. बाइबल बोलता है कि वो फिर से
उठ खड़ा होता है। Amen. If you have a Bible, turn to the book of 1 Samuel, 3rd chapter. I just want to read few verses so you'll understand what I'm preaching. 1 Samuel, 3rd chapter. अगर आप मेरे साथ निकालोगे पहला सामुएल 3रा अध्याय, Everybody knows this verse. In our Sunday class, we talk about Samuel. हमारे संडे स्कूल में हम इसको सुनते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, आप सभी को शायद ये पता होगा। So I just want to read from the 1st to the 8th verse. Just we can read it quickly, but there are many secrets God has laid in this chapter. और मैं पहले 8 पद को पढ़ूंगा। इसमें बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, लेकिन हम 1 से 8 तक पढ़ेंगे। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने की लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? Amen. तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे सामुएल। सामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। 9th verse. इसीलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे। You know what? I just want to give my title to you, a promise called again. मैं आज इस प्रचार का टाइटल मैं देना चाहता हूं कि एक प्रतिज्ञा जिसका नाम है फिर से। Amen. Again. A promise called again. एक प्रतिज्ञा जिसका नाम है फिर से। Amen. Sin is the most saddest word in the Bible. पाप जो है बाइबल में बहुत ही दुख भरी एक शब्द है। When we see someone committing sin, we feel very sad for him because he doesn't know the truth or the light. और जब हम देखते हैं किसी ने पाप किया तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उसको बाइबल के बारे में या परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है। So is a sin is the most saddest word we see in the Bible. If somebody is sinning, we need to pray for them and see to that they come into the light. इसीलिए बाइबल में जब हम पाप का शब्द सुनते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर किसी ने पाप किया तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर इसको सच्चाई का ज्ञान दो, ये पाप ना करे। One more word in the Bible is forgiveness, which is the most beautiful word. और एक दूसरा शब्द भी है बाइबल में जो बहुत ही सुंदर शब्द है, उसका अर्थ है, उसका नाम है क्षमा। It's most beautiful word. Forgiveness is most beautiful word. क्षमा जो शब्द है ये बाइबल में सबसे ज्यादा सुंदर शब्द है। If you can't forgive someone who is close to you, you cannot come and sit in the church and worship the Lord. अगर आप किसी को जो आपका पड़ोसी है उसको क्षमा नहीं कर सकते, जिसको आप जानते हो, वो आपके साथ आके कलीसिया में बैठ के प्रार्थना आराधना नहीं कर सकता। Maybe they would have done something wrong against us. Maybe they would have hurt us. But still, as a Christian, if you don't forgive them, you cannot come and worship here. हो सकता है कि आप करो, हो सकता है कि दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि अगर आप क्षमा नहीं करते हो
तो आप कलीसिया में बैठ के सच्ची आराधना नहीं कर सकते। I want to tell the church, it's very important. Just a teaching before I go to the message. Somebody will hurt you sometime, somewhere in your life. Somebody will hurt you. मैं प्रचार करने से पहले ये कलीसिया को थोड़ा चीज सिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है कभी तो किसी ने कहीं पे आपको दुख दिया होगा। Hurt is inevitable. Somewhere in our lives, any stage in our life, whether it's a pastor, is a believer, or a small in a college, anywhere, somebody will hurt you. और ये जो दुख देना ये हर किसी के लिए होता है, या पास्टर हो या विश्वासी हो या कोई भी इंसान हो। याद रखिए जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कोई तो आपको जरूर दुख देगा। I just want to give you an example in the Bible so that you can understand how to forgive someone. मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं कि बाइबल में कैसे हम आज क्षमा कर सकते हैं। See, we can come here, we are happy, we are singing, but if we have that thing inside our heart that we are not able to forgive someone, we won't get the full blessing from God. और हो सकता है हम आए यहाँ पे कलीसिया में नाचे गाएं आराधना करें, लेकिन याद रखिए अगर आपके हृदय में वो कड़वाहट है, अगर आप क्षमा नहीं किए हैं तो आप परमेश्वर से पूरी तरीके से वो आशीष को हासिल नहीं कर सकते। See, on the day when Jesus died, there were two of them who committed something against God, against Jesus. They betrayed Jesus, two of them. और जब जिस दिन प्रभु यीशु मरे उस दिन दो जन थे जो प्रभु यीशु के विरोध में आए थे। दो जन they betrayed. One, Judas. उनको धोखा दिए थे। Everybody knows about Judas. सब कोई जानते हैं कि एक ने प्रभु यीशु को धोखा दिया था। सब जानते हैं उसका नाम यहूदा। Next one, if you see, even Peter, he denied Jesus, betrayed Jesus at the same time, at the same night. और दूसरा जो है वो पतरस है। पतरस भी यीशु को सेम तरीके से, समान तरीके से वो धोखा दिया, उसी रात को वो धोखा दिया। But this is the funny thing, this is the most beautiful thing, that Peter, even though he denied Jesus on the same night, he was there on the Pentecost day and he became a leader on that day. How it is possible? ऐसा हुआ था कि पीटर ने इनकार किया था यीशु को। पीटर ने बोला था, पतरस बोला था कि मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है ये अस्वीकार किया था, इनकार किया था, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन के में वो वहां पे खड़ा था, वो वहां पे परमेश्वर के सामने था, इंतजार कर रहा था, और उस दिन के बाद वो एक लीडर बन गया। But Judas was not there. लेकिन यहूदा उस समय पेंटिकोस्ट के दिन में नहीं था। So there were two who committed mistake against Jesus, but one was reconciled by the other disciples, but the one, Judas, they were not able to reconcile with him. दो जन थे जो प्रभु यीशु को धोखा दिए, लेकिन एक जन था जो प्रभु के पास आके मेल मिलाप किया, वो क्षमा मांगा, लेकिन दूसरा वो अपने आप को प्रभु के सामने नहीं लाया, क्षमा नहीं मांगा। If you repent and come back, people will reconcile with you. अगर आप मन फिराते हो और फिर से वापस आ जाते हो तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और लोग आपके साथ मिलेंगे। Amen. The 11 disciples, they accepted Peter, they could not accept Judas. जो 11 चेले थे वो पतरस को तो स्वीकार किए, जब पतरस अस्वीकार किया था, जब वो वापस आया क्षमा मांगा तो उसको ग्रहण किए, लेकिन यहूदा को वो लोग स्वीकार नहीं पाए। Amen. There's a first thing about forgiveness is, if I repent, we can reconcile with you. और याद रखिए पहला जो स्तर है, पहला स्टेप है कि जब हम मन फिराते हैं तो reconcile. If they repent, we can reconcile. अगर वो क्षमा मांगते हैं, अगर वो मन फिराते हैं तो हम उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। If they don't repent, you can't hold them with you. You need to release them from your life. अगर वो मन नहीं फिराते हैं तो आप उनको मना नहीं सकते हो, आप उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हो, आप उनको जाने देना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। This is a very good lesson. If you're going to keep on holding that grudge, if you keep on holding that bitterness, God will not give that blessing to you. If you say, somebody I can reconcile, but somebody I release them in my life. आपको ये बोलना चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा है। याद रखिए जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आशीष नहीं देगा। आप
किसी किसी को आप मेल मिलाप कर सकते हो, कितने लोगों को आप Right. मेल मिलाप कर सकते हो, आप क्षमा मांग सकते हो, रिपेंट कर सकते हो, Right. लेकिन कुछ लोगों को आपके जीवन से आपको जाने देना होगा, आपको रिलीज करना होगा। They should be released from your life and say, I'm happy with you. I cannot reconcile, but I'm releasing you from my life so that I can go on my life. आप बोल सकते हो कि मैं आपके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाया, मन फिरा नहीं सका, ठीक है, मैं खुश हूँ, आप जाओ अपने जीवन में, मैं Right. आपको छोड़ता हूँ और मैं परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता हूँ। If you're going to have that bitterness, you cannot forgive someone. You should say, either I reconcile after repentance or release him from my life so I can go forward what God has got for me. अगर वो कड़वाहट आप अपने अंदर रखे रहोगे तो Hallelujah. आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए वो कड़वाहट को जाने दो, उस इंसान को जाने दो और बोलो कि ठीक है, आप तू अपने रास्ते में जा, मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता रहूंगा। Amen. Sin is the saddest word and forgiveness is a beautiful word. There's another word. Tomorrow is the most dangerous word. और दो शब्द जो है, वो पाप जो है, वो बाइबल में बहुत ही दुखदाई शब्द है और क्षमा जो है बहुत ही सुंदर शब्द है। और Tomorrow. तीसरा जो शब्द है वो कल, ये भी बहुत ही Tomorrow we don't know whether what God has got for us. Everything what we should do today, not tomorrow. बाइबल में और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं कल। कल के बारे में कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी चीज हमें पता नहीं है, लेकिन सब कुछ जो भी करना है हमें आज ही करना You चाहिए। cannot say, Pastor, I will come tomorrow and take baptism. Tomorrow you don't know. It's a dangerous word. Do it today. ये Hallelujah. कल जो है, कल शब्द जो है, ये बहुत ही डेंजर शब्द है, क्योंकि जब आप बोलते हो पास्टर को कि पास्टर मैं आज नहीं कल आके बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि आप कल के बारे में कुछ नहीं जानते हो, कल क्या होगा Lord. आपको पता नहीं है, इसीलिए आज ही का दिन है। Amen. Another word is there in the Bible which says no. N-O, no. No. और एक शब्द है बाइबल में जिसको हम बोलते हैं नहीं, No. When somebody is coming and asking you, can you give me 500 rupees? You know what they will do? अरे brother, अभी 500 rupees इधर है। अभी, अरे 5 मिनट पहले आया तो मैं 500 rupees देंगे। ऐसे जस्ट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। He is not going to give you anything. जब No is a hard word. दूसरा वर्ड है नहीं। और जब कभी कोई आपके पास आता है और बोलता है कि ब्रदर क्या मुझे 500 रुपए दोगे, तो हम बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई अभी जस्ट 5 मिनट पहले अगर आए होते, मेरे पास यहाँ पे 500 था, यहीं पे अभी निकाल दिया, 5 मिनट पहले अगर आए होते तो मैं दे देता। Amen. That's a ऐसा नहीं होता That's a है। very hard word when you say somebody says no to you. ये भी बहुत कठिन शब्द है जब आप बोलते हो किसी को But नहीं। another word called again in the Bible. और बाइबल में और एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं फिर से। God never leaves you down when you fall. He comes again in our life to lift us up. परमेश्वर आपको कभी भी नीचे गिरा हुआ रहने नहीं देगा। Hallelujah. परमेश्वर फिर से आपके पास आएगा और आपको उठाएगा। We serve a God who comes and helps us even when we fall. He helps us and lifts us up. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे पास हम जब गिर जाते हैं वो फिर से हमें आता है, उठाता है और ऊंचा रखता He है। doesn't say only one time. He says, I will come again and again and keep lifting you. I know you will fall. I know you are not perfect, but I want to lift you so that I can use you for the glory of हम एक God. ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमें गिरे रहने नहीं देता है। वो बोलता है अगर तू गिर जाता है तो मैं तेरे पास फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, मैं आते रहूंगा। मैं जानता हूं कि तू परफेक्ट नहीं है, पूरा नहीं है, संपूर्ण नहीं है, पवित्र नहीं है, Hallelujah. लेकिन मैं तेरे पास आता रहूंगा, तुझे उठाता रहूंगा, फिर से उठाऊंगा, फिर से उठाऊंगा। We all make mistakes, brothers and sisters. Bible says nobody is perfect except Jesus Christ. Nobody is perfect, the human. We make mistakes. But when we make mistakes, there's a God who comes again and lifts us up to his position. मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए कि हम बार-बार पाप करते हैं, बार-बार गलती करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। केवल एक ही है जो पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र है, परफेक्ट है, वो यीशु मसीह है।
हम सब पाप करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमें बोलता Hallelujah. है मैं तुझे सिद्ध करूंगा, मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा, फिर से उठाऊंगा। There are many chances of all of us falling down in our lives, in the Christian life. We will have chances to fall down. और बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम गिर जाते हैं, हमारे जीवन में गिर जाते हैं, और हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जहां पे हम गिर जाएंगे। To build a building, it takes many months. To destroy a building, even few hours is enough. याद रखिए कि एक बिल्डिंग को खड़ा करने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक तोड़ने में थोड़े ही समय लगता है और टूट जाता है। Your character can be destroyed within one word from one of your relatives. Your character will be destroyed. आपका चरित्र जो है एक थोड़े से पल में आपका चरित्र को छार-खार हो सकता है। Oh, one word from their mouth will fall and you will fall down. But Jesus says, the Bible says, I will come back again to lift you up. एक शब्द आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द आपको गिरा देता है, लेकिन बाइबल बोलता है, प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर तू गिर गया है तो मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से तुझे उठाऊंगा। I want to tell the church, I will rise again. मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं कि मैं फिर से उठूंगा, I will live again. और मैं फिर से I will जीऊंगा, walk again. मैं फिर से I आगे will run बढ़ूंगा, for God again. मैं प्रभु I यीशु के will लिए read फिर the से Bible दौड़ूंगा, again. मैं यीशु I के लिए will pray again. मैं I फिर will से live for प्रार्थना God करूंगा, again. मैं फिर से नहीं कि नीचे गिरूंगा, मैं फिर से उठूंगा। Can you just clap your hands and say, I क्या want to आप live अपने- again? Can you क्या just clap अपने your hands हाथों and में say, ताली yes? बजा सकते हैं और परमेश्वर के लिए बोल Hallelujah. सकते हैं, मैं प्रभु के लिए फिर से उठूंगा। You know, in the physical world, when somebody falls down, when he falls down in the younger age, in the school days, they have a game. They'll have the chair behind you. When you're about to sit down, they pull the chair. This is what they do. They keep the chair, and when you're about to sit down, they pull it. और ऐसा होता है कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में ऐसा ही होता है कि जब चेयर में हम बैठने वाले होते हैं, चेयर में वो लोग क्या करते हैं, पीछे से चेयर को खींच लेते हैं और वो लोग ऐसे गिर जाते हैं, And everybody will laugh like, hey. और सबको ही ताली बजाते हैं और हंसने लगते हैं। But God doesn't laugh at you when you fall. लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपके ऊपर कभी नहीं हंसता जब आप गिरते हो। He doesn't see you and laugh at you. He says, don't worry, my boy. Don't worry, my sister. Don't worry, my brother. Look at my hand. My hand is still there waiting for you. Just hold my hand and get up again. लेकिन हमारा परमेश्वर जब आप गिरते हो आपके ऊपर हंसता नहीं है, आपके ऊपर आपको देख के हंसता नहीं है, वो बोलता है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे उठा लूंगा, फिर से उठ जा, खड़े हो जा। हमारा Hallelujah. परमेश्वर हमारे ऊपर जब हम गिरते हैं Praise वो हंसता God. नहीं है, हमारा मजाक नहीं उड़ाता। Hallelujah. Somebody in this church, we have lost the connection with God. कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वो जो कनेक्शन होता है वो खो चुके होते हैं। We are not speaking to God, nor able to hear His voice, even though we are inside the church. हम परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं, ना उसका आवाज सुनते हैं। हम भले ही हम कलीसिया में रहते हैं, लेकिन हम उसका ना ही आवाज सुनते हैं, ना उससे बातें करते हैं। Look at Samuel. He is inside the church. He is doing the church work. He is doing cleaning work. He is playing guitar. He is playing the music instrument. But he can't understand the voice of God. देखिए सामुएल के बारे में देखिए, वो कलीसिया में था, वो कलीसिया में रहता था, कलीसिया का काम करता था, हो सकता है वो कलीसिया का बाजा बजाता था, म्यूजिशियन था, लेकिन वो परमेश्वर का आवाज को पहचानता नहीं था। I want you to understand this. Eli, the priest, his eyes are closed. इलाई जो था, जो याजक जो था, उसका आंख बंद हो चुका था, वो देख नहीं पा रहा था। And Bible says there was no vision and the word was not there. और बाइबल बोलता है उस समय ना ही स्वप्न आते थे, ना ही दर्शन परमेश्वर की तरफ से आता था। Inside the church, कलीसिया के भीतर there's और no कुछ नहीं word, था। there's no word, there's no vision, and the high priest who has to preach, he is blind. ये ध्यान से सुनिए कि कलीसिया में ना ही कोई स्वप्न था, कोई दर्शन था, वचन नहीं था, और जो याजक था वो अंधा हो चुका था, वो देख नहीं पा रहा था, तो कोई प्रचार भी नहीं हो रहा था, और जो एली था वो छोटा था, जो सामुएल था वो छोटा था। But that's the time when God
is calling Samuel. लेकिन- Samuel, वही समय था Samuel. जब परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया। Oh. सामुएल, ओ सामुएल। Rabba Shekele Rabo. When everything was down, now जब God, सब कुछ गिरा पड़ा रहता है, God's तभी voice, परमेश्वर God's देखता है। voice. परमेश्वर का आवाज सुनाई देता God's है। voice. परमेश्वर का He आवाज says, आता है। Samuel, सामुएल, Samuel. सामुएल, Oh, I want to speak to you, Samuel. मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ सामुएल। Samuel, you are staying inside the church. सामुएल, तुम कलीसिया के भीतर रहते You हो। are doing all the work of the तू church. कलीसिया का सारा काम करता है। I want to talk to you मैं now. तुझसे बातें करना चाहता हूँ। Can you hear my voice, Samuel? क्या तू मेरे आवाज को सुन सकता है सामुएल? Oh, Samuel is he thinks it is Eli and he runs to Eli. Eli, did you call me? और सामुएल सोचा कि ये एली ने मुझे बुलाया है। एली के पास चला गया और बोला, एली क्या मुझे तूने बुलाया? I don't know whether the voice was like this, Samuel, Samuel. You know, all the movies. No. It was an ordinary voice. Samuel, Samuel. He ran to Eli again and said, Eli, did you call me? और मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, सामुएल सामुएल, Yeah. ऐसा नहीं। लेकिन उसको ऐसा सामुएल ऐसा आवाज सुनाई दिया कि वो दौड़ के एली के पास गया और एली से पूछा कि एली क्या तूने मुझे बुलाया? Look at this. Samuel inside the church. He's been there. He cannot understand the voice of God. सोच के देखिए कि ये जो सामुएल था, ये कलीसिया में रहता था, कलीसिया का काम करता था, लेकिन वो परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाता था, पहचान नहीं पा रहा था। There was no word, there was no vision. Eli had eyes were closed. That's the time when God wants to talk to someone. Samuel, you are the person. I want to talk to you. और जब परमेश्वर का ना ही कोई दर्शन था, ना ही कोई स्वप्न था, ना ही कोई वचन था, तभी परमेश्वर एक जन को चुनते हैं और बोलते हैं परमेश्वर का आवाज से, सामुएल अभी ये समय है जिसमें मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बात करना चाहता I want to talk to you, Samuel. हूँ। सामुएल Get तेरे up. साथ बातें करना चाहता Get हूँ। up, Samuel. उठ जाओ सामुएल, You've been मैं तेरे साथ sleeping. बातें करना चाहता Get हूँ। up, तू Samuel. सोया हुआ है, I want सामुएल, you to उठ hear जा। my तू voice. सोया हुआ है, मैं चाहता हूँ तुझसे बातें करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ बातें कर। You know what Samuel did? He goes to the world again and asking the world, did he call me? Did he call me? Did he call me? World. They goes to the world. सामुएल फिर से Tradition. वो संसार के ओर भागता है और बोलता है, संसार क्या तूने मुझे बुलाया? संसार क्या तूने मुझे बुलाया? He goes back to the world and tradition, but God says, you're not able to hear my voice. सामुएल अपने रीति रिवाज में फिर से चला गया और बोला, क्या मुझे बुलाया? मैं नहीं। No. Some of us are in that stage where we want to hear the voice of God from today. Hallelujah. हम भी ऐसे स्तर में हैं, ऐसे जगह में हैं, हम में से कुछ लोग जो परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहते हैं। He doesn't leave you until you hear His voice. वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप परमेश्वर का आवाज को नहीं सुन He पाओ। keeps calling you 3 times, Samuel. He did not listen. God did not leave him. He spoke to him again. Praise the Lord. Hallelujah. आप जब तक उसके आवाज को नहीं पहचान लेते तब तक वो आपको बुलाते रहेगा। Praise God. सामुएल वो बुलाते गया और सामुएल पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन आखिरकार परमेश्वर फिर से सामुएल को बुलाया। Somebody, और आखिर में पहचान। if you lost your connection, God is connecting you today with Him. Hear my voice and listen to me. I want to speak to you today again. आप Hallelujah. कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो, तो परमेश्वर आपको बोलना चाहते हैं, मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ, मेरे आवाज को सुनो, पहचानो। You lost the connection. Some of you are inside the church, but you lost your connection with God. आप में से कुछ लोग कलीसिया में भले ही हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वो रिश्ता को खो चुके हैं। You are worshiping, you are happy, you are doing everything, but you lost the connection. You do not know the voice of God. आप आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, आप खुश हो, लेकिन किसी भी तरह कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से वो कनेक्शन खो चुके हो। God is connecting you today with a परमेश्वर new आज
connection. परमेश्वर आज आपको उस कनेक्शन वो रिश्ते में जोड़ना चाहता है। Oh, Samuel, I will not leave you because you are the first prophet who has to anoint the kings of Israel. और सामुएल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू इस्राएल में पहला भविष्यवक्ता बनेगा जिसको मैं खड़ा करूंगा। Can I repeat it again? Some of you may not understand the preaching, but slowly. Samuel, I will speak again because you are going to be the first prophet to anoint the kings of Israel. और हो सकता है आप में से कुछ समझ नहीं पाए, मैं फिर से बोलना चाहता हूं। परमेश्वर बोले, सामुएल, मैं तुझे भविष्यवक्ता, इजराइल में पहला भविष्यवक्ता बनाऊंगा ताकि तू इजराइल का पहला राजा को अभिषेक कर सके। Unless you are ready, the Israel king is not ready. Hallelujah. जब तक तू तैयार नहीं रहेगा तब तक इजराइल के राजा को मैं तैयार नहीं करूंगा। Unless the Samuels are ready, the kings will be waiting in line for Samuels. जब तक सामुएल तैयार नहीं रहेगा तब तक राजा तैयार नहीं होगा। The church, you should be ready to hear the voice of God. Hallelujah. कलीसिया, आप परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। If you are doing the work in the church, it's important that you hear the voice. हो सकता है आप कलीसिया का सारा काम करते हो लेकिन परमेश्वर का आवाज आपको सुनना है। Is it from God? I need to listen to, because when God speaks, your life changes. याद रखिए, आपको समझना होगा क्या ये परमेश्वर का आवाज है। जिस दिन आप परमेश्वर का आवाज सुन जाओगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। Samuel will be only cleaning the temple. Now God says, Samuel, lift the oil, Samuel. Enough of cleaning the church. Lift the oil. The oil is with you, Samuel. और सामुएल काम कर रहा था, कलीसिया का काम कर रहा था, मंदिर का काम कर रहा था, तभी परमेश्वर का आवाज आता है और बोलता है कि सामुएल, अभी तू उठ जा और तेल को उठा ले क्योंकि तुझे अभी take the oil. Can you just tell along with me? Take the oil. अब मेरे साथ आप बोलिए, तेल को उठा ले। Can you just tell along with me? क्या मेरे साथ आप बोल सकते हो, तेल को उठा ले? Take the oil. तेल को उठा ले। Samuel, take the oil. सामुएल तेल को उठाया। It's time to anoint the kings of अभी Samuel. समय हो चुका है सामुएल एक राजा को अभिषेक करने के लिए। Oh, kings are waiting in line. Saul is waiting in line. राजा वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। Oh, David is waiting in the line. याद रखिए, राजा वेट कर रहा है। Saul is waiting for you, Samuel. साउल वेट कर रहा है सामुएल। Everybody should wait for you, Samuel, if only you can listen to my voice. याद रखिए, सामुएल जैसा हम परमेश्वर, हमारे लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जब तक आप परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनोगे तब तक राजा तैयार नहीं होगा। कोई इंतजार कर रहा है हमारे लिए, कोई इंतजार कर रहे हैं। Even if you don't listen to me, he does not leave you because he has chosen you. He will speak to you again. हो सकता है आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन याद रहो, परमेश्वर अभी भी आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको वो चुना है और आपको वो फिर से बुलाएगा। Praise the Lord. He will speak to you again. आपको वो फिर से बोलेगा। Can I tell you, some of you are lost. You are just sitting there as a Christian, but you lost the connection with God. क्या मैं आपको बोल सकता हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं लेकिन आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ वो रिश्ता खो चुके हैं, वो रिश्ता को गवा चुके हैं। Can you lift your hand and say, Lord, speak to me again? क्या आप बोल सकते हो, प्रभु मैं अपने हाथों को उठा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि मेरे से बातें कर फिर से प्रभु। Lord, speak to me again, Lord. प्रभु मेरे से फिर से बातें कर प्रभु। I had a good connection with you. प्रभु मेरा तेरे साथ अच्छा रिश्ता था प्रभु। I was hearing your voice, Lord. प्रभु मैं तेरा आवाज को सुनता था। I was speaking to you, Jesus. प्रभु मैं तेरे साथ बातें करता था। But the world has made me stop it, Lord. लेकिन ये संसार, ये दुनिया मुझे झुठला दिया प्रभु। Speak to me again. प्रभु मेरे से फिर से बातें कर प्रभु। Rakaboshe, speak to me again, Lord. मुझे फिर से बोल। I have fallen down. प्रभु मैं गिर गया हूँ। Oh, lift me up again, Lord उठा ले फिर Jesus. से मुझे प्रभु। I have to hear your voice again in my मैं तेरा life. आवाज फिर से सुनना चाहता हूँ। I need to know where I'm going, Lord. प्रभु Hallelujah. मैं जानना चाहता हूँ मैं किस और जा रहा हूँ। I can't be doing the same thing again. Show me the way. वही काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरा सेवा करना चाहता हूँ फिर से प्रभु। Speak to me, Lord. Speak to me मुझसे again. बातें कर प्रभु, फिर से मुझसे बातें कर प्रभु, फिर से मेरा रिश्ता बना प्रभु। Hallelujah, 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 hallelujah. Even preachers, we lose our connection with God.
Hallelujah. हम प्रचारक होने के बावजूद भी हम भी कभी कभी हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता को हम खो जाते हैं। with the pressure of the world and the pressure of the church, we lose the connection. हम संसार के प्रति जो बोझ हमारे ऊपर आता है, जो प्रभाव हमारे कलीसिया से आता है, हम परमेश्वर के साथ वो We रिश्ता ask को गवा God, देते हैं। Lord, connect me again. Lord, speak हम to me बोलते again. हैं प्रभु को, प्रभु मुझे फिर से वो रिश्ता दे, प्रभु फिर से वो कनेक्शन से Give जोड़ me प्रभु। new connection, Lord. Give me new connection, Lord. प्रभु एक Hallelujah. नया रिश्ता से जोड़ प्रभु, Jesus' name. Hallelujah. यीशु के नाम से। When God speaks to you again, जब परमेश्वर आपसे फिर से बातें करेगा, He will give you victory again. आपको वो फिर से विजय दिलाएगा। Amen. Amen. Do you know when the people of Israel, when they came out from Egypt, आपको पता है जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल रहे थे, they were coming out, and in one night, God changed everything. One night, He brought them from slavery. आपको पता है जब वो मिस्र से बाहर निकले, सिर्फ एक ही रात में इजराइल को पूरी तरीके से बदल दिए। My God can do it in 1 minute. मेरा परमेश्वर 1 मिनट में ये वो कर सकता है। It's not the full message. One moment, when you receive it, God can change your life. याद रखिए, मेरा परमेश्वर 1 मिनट में वो कर सकता है। 1 मिनट में परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छुएगा और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। Amen. One Amen. night, He brought so many people out from the darkness. एक रात में पूरे इजराइल को मिस्र से वो दासत्व के बंधन से बाहर निकाल दिया, वो गुलामी के बंधन से सिर्फ एक रात में हमारा परमेश्वर एक रात में बाहर निकाल They were दिया। very happy, and they came and they were singing and they're happy. वो लोग And बहुत खुश थे, वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। suddenly there was a Red Sea there. हठात सामने एक Red लाल Sea. समंदर आ गया। Red Sea is there. Hallelujah. लाल समंदर सामने आ In गया। front of them there was Red Sea, and behind them the Egyptians were chasing them. सामने लाल समंदर है और पीछे मिस्र लोग, फिरौन की सेना उनको पीछे पीछे आ रहे हैं। Amen. हमारा पीछे पीछे भी इजिप्ट आ रहे हैं। हमारे पीछे पीछे मिस्र के लोग भी आ रहे हैं। हम लोग चर्च में अच्छा है, मगर हम रोड पे जाए तो हमारा इजिप्शियन हमारा पीछे पीछे आ रहा है। चर्च में हम लोग तो अच्छे हैं, लेकिन हम जब काम में जाते हैं मिस्र के लोग हमारे पीछे पीछे हमारा यूट्यूब पीछे पीछे आ रहा है। हमारा यूट्यूब भी पीछे पीछे आ रहा है। हमारा यूट्यूब भी हम पीछे हमारा व्हाट्सएप रील्स पीछे पीछे आ रहा है। व्हाट्सएप का रील भी पीछे पीछे आ रहा है। हमारा मूवी सॉन्ग पीछे पीछे आ रहा है। हमारा मूवी सॉन्ग पीछे पीछे आ रहा है ना। इजिप्ट आ रहा है पीछे पीछे। मिस्र पीछे पीछे आ रहा है। You are come out of Egypt, but Egypt is not come out of you. आप मिस्र से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन आपसे मिस्र अभी तक बाहर नहीं निकला है। Hallelujah. Hallelujah. You have come out of slavery, but the slavery is still chasing you. आप गुलामी से तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन गुलामी आपके पीछे पीछे आ रहा है। When you're baptized, you're free from all the slavery, but you want to go back to the slavery. जब आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हो, आप Yes. आजाद हो जाते हो, लेकिन फिर से आप गुलामी में जाना चाहते हो। Egypt is chasing them. Hallelujah. मिस्र आपके पीछे दौड़ा Red रहा है। Sea is in front of them. लाल समंदर उनके सामने है। Oh, you know what? They started murmuring with Moses. Moses, why did you bring us here? और वो लोग मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को कंप्लेन करने लगे कि मूसा तूने हमें यहाँ पे क्यों लाया। 2 miracles happened at the same time. 2 miracles. 2 चमत्कार उसी एक समान समय में हुआ। He said, take the rod and the Red Sea will be parted. और परमेश्वर बोले कि वो अपने क्या बोले? Take the rod, हाँ? parted. अपने लाठी को उठा और लाल समंदर को पीट। लाल समंदर 2 हिस्से में बट गया। Oh, the Red Sea was free now, but behind the Egyptians were chasing them. Hallelujah. लाल समंदर 2 हिस्से में बट गया, लेकिन पीछे अभी भी फिरौन की सेना, मिस्र के लोग अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहे You हैं। know what the second miracle? Hallelujah. आपको पता है दूसरा चमत्कार क्या हुआ? Bible says God came and told Moses, the Egyptians whom you have seen now, you will never see again in your life. Hallelujah. आपको पता है दूसरा चमत्कार क्या था? दूसरा चमत्कार ये था कि परमेश्वर बोले कि जो फिरौन की सेना आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आप जिनको अभी देख रहे हो, आज के बाद उन्हें आप कभी देख नहीं पाओगे। Come on, church. Come on, church. I want you to understand मैं this. चाहता हूँ कि आप कलीसिया आप ये समझो, आप ये समझो। The failures which were chasing you, you'll never see again. The failures.
आपका जो फेलियर, जो आपका जो हार है, जो आपके पीछे पीछे बार बार आ रहा है, बार बार आप जो हारते हो, वो आपको फिर से नहीं मिलेगा। Your tears is not going to come with you again. आपका Hallelujah. जो आंसू है आपके जीवन में फिर से नहीं Your आएगा। sadness is not going to come again. Hallelujah. Your sadness is not going to आपका come दुख again. जो है आपके जीवन में फिर से नहीं आएगा। All the disappointments what you had is not going to come again in your आप life. पूरा जो निराशाएं हैं वो आपके जीवन में फिर से नहीं The आएगा। past things which was haunting you will never come again. जो पुराने अतीत का जो जीवन है, जो आपको Jesus. बार बार घात करता है, वो आपके पीछे और कभी नहीं आएगा। The Egyptian whom you have seen, you will never ever see again in your life. जो मिस्र के लोग आपके पीछे आ रहे हैं, जिनको आप देख रहे हो, उनको आप आज के बाद और कभी नहीं देखोगे। God has given you a victory right now in the name of परमेश्वर Jesus. आज आपको वो विजय देते हैं अभी इसी वक्त। The things which were holding me is not going to hold me anymore. जो चीजें मुझे पकड़ के रखा है, पीछे खींच रहा है, वो आज के बाद और मुझे नहीं पकड़ के रखेगा। Victory has come to my life. विजय मेरे जीवन में आ चुका है। My Red Sea is opened. लाल समंदर Yes. 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। The Egyptians who are searching me and coming behind me, they'll never come again in my life. जो मिस्र के लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वो आज के बाद मेरे पीछे और नहीं आ पाएंगे। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, He will give you victory again. याद रखिए वो आपको फिर से विजय देगा। Number 3, I'll close with 4. Number 3. तीसरा मैं चार विषय को बोल के समाप्त करूंगा, लेकिन तीसरा विषय मेरा की बुक लगे है. I'm मुझे also भी feeling भूख like. लग रहा है। Amen. Number 1, God will speak to you again. Number 2, the Egyptians you have seen, you'll never see again in your life. पहला चीज, परमेश्वर आपसे फिर से बातें करेगा। दूसरा विषय, जो मिस्र की सेना को आप देख रहे हो अपने जीवन में, उसको आप फिर से नहीं देखोगे कभी। Number 3, very important. I don't know whether you understand this, but I'm going to preach it anyway. तीसरा विषय, मुझे पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन आप समझो नहीं समझो, मुझे तो प्रचार करना है। All right. God will give you a future again. Future. परमेश्वर आपको एक नया भविष्य फिर से देगा। Amen. Let me tell this. He will give you a future. Wow. परमेश्वर आपको एक भविष्य दे रहा है फिर से। I tell you, victory is different. Future is different. मैं आपको बताना चाहता हूँ, विजय अलग बात है और भविष्य अलग चीज है। You know what? Remember, in Garden of Eden, Adam and Eve, God gave them a promise. आपको पता है जो आदम वाटिका था, वहाँ पे जो आदम और हवा थे, परमेश्वर उनके साथ Promise. He gave a promise. परमेश्वर उनको एक प्रतिज्ञा दिया था। Pratikya. He gave a promise to him. He said, the son who's going to be born will be the one who's going to put that feet on the heel of the devil. और परमेश्वर उनको एक प्रतिज्ञा दिया था कि जो पुत्र तुमसे पैदा होगा, उसका वो सांप को कुचलेगा अपने पैरों के नीचे। So that was a promise. और वो प्रतिज्ञा उनके पास था। Oh, when we get promise from the pastor, from the pulpit, we say, this is my promise, this is my promise. और जब हम वो प्रतिज्ञा पुलपिट में पास्टर के द्वारा हम पाते हैं, हम पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरे लिए प्रतिज्ञा आया है। Amen. You will not leave your promise, right? This is my promise. God gave me a promise. Sermon, come here, sermon, come here. Sermon, इधर आ जाओ. और ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रतिज्ञा है परमेश्वर के तरफ से। God gave me a promise. परमेश्वर ने मुझे ये प्रतिज्ञा दिया है। Abel and Cain, the two sons, God gave Adam and Eve. हाबिल और कैन जो था, वो परमेश्वर का दो बेटे थे। So can you imagine Adam and Eve? No, this is my promise. These children are क्या my आप सोच promise. सकते हो आदम और हवा कैसे बोले, नहीं, ये में हमारा प्रतिज्ञा है, परमेश्वर हमें दिए हैं, यही हमारा प्रतिज्ञा है। You know, even in our life, we have dreams and goals, and we have a goal in our life. आपको पता है हमारे जीवन में हम लक्ष्य रखते हैं, सपना रखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे। Oh, I want this future. I want to do this. My dreams are like that. Suddenly God comes and says, that's not my dream and that's not my future.
ओके बहुत बार हम बोलते हैं कि ये मेरा सपना है, ये मेरा भविष्य है, परमेश्वर मुझे ऐसे करेंगे, और सडनली परमेश्वर हठात से परमेश्वर बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा भविष्य नहीं है, ये मेरा तेरे लिए भविष्य नहीं है, ये मेरा सपना तेरे लिए नहीं है, ये आपका सपना है, ये मेरा आपका सपना नहीं है। ये मेरा दिया हुआ सपना नहीं You है। want your dreams to come true through my will. No, my dream is different. My future is different from what you want. ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारा विजन है, ये तुम्हारा भविष्य है, मेरा भविष्य और मेरा सपना अलग है। Sometimes you keep on holding to the promise which God has not given you. बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो प्रतिज्ञा को पकड़े रहते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें कभी दिया ही नहीं That's है। not God's way in your life, but you're holding on to the promise. You're saying, "This is mine, Lord." God says, "I did not give you that." परमेश्वर का ऐसा रास्ता नहीं है, परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता, वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा नहीं था। आप पकड़े हुए हो और आप बोलते हो कि यही मेरा प्रतिज्ञा है, You are यही protected. परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिज्ञा वो नहीं था। You know what happened? Cain and Abel, both of them died. आपको पता है क्या हुआ? कैन और हाबिल दोनों मर And गए। Adam and Eve were just they were so frustrated. They were just waiting and waiting. Then nothing happened that time. और आदम और हवा बैठे थे, रो रहे थे और सोच रहे थे, और वो लोग रो रहे थे और बोल रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और कुछ भी नहीं हुआ। Now Bible says Adam came to know Eve again. Adam came to know Eve again. He came in relationship with Eve again. God gave him the strength to come and have a relationship with Eve again. बाइबल बोलता है कि आदम और हवा को, आदम को परमेश्वर ने फिर से हवा के साथ वो संबंध बनाने का मौका दिया। फिर से परमेश्वर आदम को वो फिर से हवा के पास जाने का वो स्ट्रेंथ दिया, सामर्थ्य दिया। God will give us a strength to have a new future. परमेश्वर हमें वो शक्ति देगा, वो सामर्थ्य देगा कि हमारा भविष्य फिर से हो। If you have victory, अगर आपके पास विजय you're going to है, have future. You're going to have future. आपके पास एक भविष्य भी होगा। God speaks to you and gives you victory, and the victory will give you a future. I know you cannot understand what I'm saying. Adam knew Eve. He gives you the strength to reproduce again. परमेश्वर अगर आपको विजय दिया है तो याद रखिए वही विजय आपको एक भविष्य देगा। मुझे पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन परमेश्वर आदम और हवा को एक साहस दिया, एक सामर्थ्य दिया कि वो फिर से वो सपना को देख सके। फिर से they were able to reproduce their promise, and that promise was Seth. Seth was their promise, not Cain and Abel. Amen. फिर से परमेश्वर ने आदम को वो स्ट्रेंथ दिया कि हवा के पास जाए और फिर से एक बच्चा जन्मे, और वो फिर से बच्चा जन्मे और उसका नाम सेथ था। सेथ ही उनका प्रतिज्ञा था, आबिल और कैन नहीं थे। That was the future for them, not Cain and Abel. Seth was the future. सेथ उनका Future. Future. सेथ उनका भविष्य था, सेथ उनका प्रतिज्ञा था, कैन और हाबिल नहीं थे। God speaks to you again. He gives you victory again. He gives you future again. Last, He blesses you again. परमेश्वर आपको परमेश्वर Speaks to आपसे you. बातें करेगा पहले, फिर से Victory. आपको विजय देगा, फिर से Future. परमेश्वर आपको भविष्य देगा फिर And से, He will bless you again. और चौथा परमेश्वर फिर से आपको आशीष। How many? Some of you are already sleeping very nicely. Some of you are already. आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से सो रहे हैं, मुझे पता है। मेरा चर्च में भी they will सो रहे. आपका आंखें खुली हो के आप सो रहे हो। मैं चर्च में बैठा हूं लेकिन आप सो रहे हो। So when you are seeing as a pastor, but they'll be sleeping. Amen. Very आप nice. देख रहे हो पास्टर को आंखें से और बोल रहे हो हाँ हाँ, So you know लेकिन आप what? सो रहे हो। You know what we will do? Those who are there, how many are giving 10,000 rupees for God? Hallelujah! Then we'll catch them. Come on, 10,000 rupees. Come, you gave donation. 10,000 rupees. Come here. You know, that is the way we do in Chennai. Amen. बहुत बार ऐसे होता है कि हम आंखें खुला रहता है और हम देखते रहते हैं, हम सोए रहते हैं, और तभी पास्टर बोल देते हैं कि कितने लोग यहाँ पे हो जो कलीसिया के लिए 10,000 दोगे, और सडनली वो सोया रहता है और बोलता है हाँ पास्टर
छोड़ मैं दूंगा और कभी बोलते हैं ठीक है आओ 10,000 दो. Amen. Amen. Praise the Lord. Actually, the preaching, only 8 minutes is attention for you all. Only 8 minutes. Attention for you is only 8 minutes. जानते हो आपको केवल 8 मिनट का अटेंशन चाहिए. 8 minutes only you will look like this. After the 9th minute, how? आप केवल 8 मिनट तक जगे रह सकते हो. 8 मिनट के बाद आप सोना शुरू करोगे. हम लोग ऐसे जोक करना पड़ेगा, आप लोग का फोकस करना पड़ेगा. ऐसी है. हमको ऐसे जोक बंद करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग हमारे तरफ ऐसे अटेंशन दो. ये शाहरुख खान मूवी 2.5 hours, 3 hours. 3 घंटा मूवी जो देखते हो आप बहुत अच्छे से देखते हो करते रहते 1 हो. मिनट सोना रही है शाहरुख खान मूवी. वो मूवी में 1 मिनट भी आप सोते नहीं हो. आपका आंख भी खुला रहता है. हाँ, अभी चर्च में आए तो मेरा चर्च में आते हो तो आपका आंख के गिरता रहता है. When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बातें God करेंगे, gives you victory. परमेश्वर आपको विजय देंगे. When the victory is there, जब आपका विजेता आपके God साथ gives you होगा, a future. परमेश्वर आपको एक भविष्य देगा. Not the future what you want, but what He wants. लेकिन आपका भविष्य पर आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होगा. Last one, He gives you a blessing again. चौथा, Hallelujah. परमेश्वर आपको एक फिर से आशीष देगा. You remember Isaac, Abraham, Isaac and Jacob. Isaac, he was a rich man, and whatever he was digging the well, every well gave him lot of money. आपको पता है अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में. इसहाक जब कभी भी कुछ भी वो करता था, वो यहाँ से बहुत सारा पैसा उगाता था. मतलब जमीन से पैसा ही निकलता था. But the enemy came and closed every well. Whatever he opened, they came and closed the well. आपको पता है वो जब भी एक कुआं खोदता था वहां से पानी निकलता, लेकिन हर वक्त शत्रु आके उस सारे कुएं को वो बंद कर देते थे. Some of our life was like that. We want to progress, we want to do something, but the enemy comes and closes our plans. हम में से कुछ लोग का जीवन में ऐसा ही होता है. हम चाहते हैं आगे बढ़ना, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शत्रु आता है और हमारे कुएं को बंद कर देता है. You are digging something and the enemy comes and closes it. Your blessing is closed every time. The enemy comes and closes your आप blessing. कुआं खोदते हो और तुरंत वो शत्रु आता है उसको बंद कर देता है. फिर से आपके जीवन में फिर से आप कुआं खोदते हो और आशीष के लिए, लेकिन शत्रु आके बंद कर देता है. Every time you have something in your plan, the devil comes and spoils your plan. याद रखिए जब कभी भी आप परमेश्वर में आशीष पाते हो तो शैतान आता है उसको छीन लेता But है. I come to tell you this. The Lord told Isaac, don't worry about the closed wells. Dig again. Dig again. लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि इसहाक वो बंद किया गया कुएं के बारे में चिंता नहीं कर. परमेश्वर बोलते हैं कि इसहाक Dig again. फिर से कुआं कोड़, फिर Dig से again. कुआं कोड़, फिर से कुआं कोड़. Dig again. फिर से He कुआं says, कोड़. when you keep digging, जब आप कुआं खोदते रहोगे, when you keep digging, the dirt will come out. जब आप कुआं खोदोगे, याद रखो मिट्टी बाहर निकलेगा. Amen. Amen. You want blessing, but God says, first remove your dirt. आपको आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो पहले मिट्टी को बाहर निकालो. You want a car, you want a house, you want this, you want that. God says, dig and your dirt will come out first. आपको आशीष चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अच्छा भविष्य चाहिए, आपको कार चाहिए, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि कुआं खोदने से पहले, पानी निकलने से पहले वहां का मिट्टी को आपको बाहर निकालना होगा. Take your jealous out. Take your jealousy out. Jealousy. आपका जलन बाहर निकालो. Take your pride out. आपका घमंड बाहर निकालो. Take your backbiting out. आपका चुगली बाहर फेंको. All the bad habits, take it out. आपका सारा बुरा अभ्यास को बाहर फेंको. When you're digging and digging, suddenly some water will be जब coming आप from your well. ये Hallelujah. सारा खोदते रहोगे और सारे चीजों को फेंकते रहोगे, तुरंत वहां से थोड़ा पानी निकलते जाएगा. Until the water comes, keep digging your wells. याद Hallelujah. रखो, जब तक पानी नहीं निकलता तब तक वो सारे को खोदते रहो और सब कुछ फेंकते रहो. Amen. This is the shovel. This is the shovel. The Bible is your shovel. यही वो क्या बोलते हैं, नहीं सावल को पता है, बेलचा काना कोसो
shovel. फावड़ा फावड़ा Kavada. फावड़ा फावड़ा इज डिफरेंट थिंग, यही हमारा फावड़ा है जिसे हम खोदेंगे। How many have the pavada in your hands? आपके कितनों के पास फावड़ा है? हाथ उठाओ, कितने के पास फावड़ा? हाँ। फावड़ा दिखाओ, अपना फावड़ा कहाँ है? The word, you need to dig your life with the word of God. आपके जीवन को इसी फावड़े से ही खोद के बाहर फेंकना है अपने Amen. बुरे Every अभ्यासों time को। you read the Bible, you are digging the word. हर वक्त जब कभी भी आप बाइबल को पढ़ते हो, आप कुआं खोद रहे हो। They keep digging through the word of God, you're going to get the water slowly in your याद life. रखो, इस परमेश्वर के वचन में आप खोदते रहोगे तो परमेश्वर का जीवन का जल वो पाओगे। Until you go to Rehoboth, keep digging the wells. आप जब तक आपको रहमोस नहीं मिलता तब तक आप खोदते रहो। Amen. Until you go to Rehoboth, come. You keep this. This is your life. This is your यही आपका life. जीवन है, This is your life. You keep digging. यही आपका जीवन है। आप कुआं खोद रहे हो। You know, Rehoboth means a large place. रहमोत का मतलब होता है एक बड़ा सा जगह। ये है ना, ऐसे लेफ्ट में, वो भी हमको चाहिए। आप ये जो साइड वाला जगह है ना, वो भी आपको चाहिए कलीसिया को। Keep digging the well. आपको कुआं खोदते रहना होगा। God was saying, until go to Rehoboth, keep digging the well. जब तक आप रहबोत नहीं पाते हो तब तक आप कुआं खोदते रहो। Amen. When you go to Rehoboth, जब आप रहबोत तक पहुंचोगे, आप अपने आप को बड़ा कर दोगे। आप ऐसे थे पहले, but when you keep digging your well, God says, I'm going to take you to Rehoboth. जब आप अपने आप को खोदते रहोगे, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे इतना बड़ा कर दूंगा। I want a Rehoboth blessing. मैं रहबोत ब्लेसिंग चाहता हूं। I am not satisfied with your, I want a Rehoboth enlarged blessing. मैं इस Hallelujah. आशीष से खुश नहीं हूं, मुझे बड़ा जगह चाहिए, रहबोत ब्लेसिंग Can you चाहिए। lift your hands and say, I want Rehoboth blessing? क्या अपने हाथ को ऐसे फैला के बोल सकते हो, मुझे I want रहबोत Rehoboth चाहिए। blessing. मुझे ऐसा I'm रहबोत going to आशीष dig, चाहिए। Lord. I'm going to dig, Lord. मैं ऐसे कुआं खोदते जाऊंगा। Bless me मैं again. कुआं पे- मुझे फिर से आशीष कर प्रभु। I am not satisfied with the blessing I मैं have. इससे I खुश need a नहीं हूं। Rehoboth. मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे और ज्यादा आशीष चाहिए। Take me to Rehoboth, Jesus. मुझे रहबोत Hallelujah. तक पहुंचा तक। Enough of small things, Lord. Give me a large मुझे ministry. ये थोड़ा सा जगह नहीं चाहिए, मुझे और रहबोत ब्लेसिंग चाहिए प्रभु। 13th year of anniversary. Hallelujah. 13th year of anniversary. 13वां साल कलीसिया का। I declare in the name of Jesus. मैं ये Hallelujah. कलीसिया के लिए घोषणा करता हूँ। Before you go to the 14th year, 14वां साल जाने से पहले a Rehoboth blessing to come to this church. APC रहबोत in the name of आशीष इस Jesus. कलीसिया के लिए आ जाए। आमेन, हालेलुया। Yes, Lord. ये हमारा I declare this promise in the name of Jesus. मैं यही यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। People will put mud in your plants, but God says, until you go to Rehoboth, keep digging, keep digging, keep digging, keep. आपके कुएं में शत्रुएं मिट्टी डालते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं जब तक आप रहबोत तक नहीं पहुंचते, कुआं खोदते रहो, खोदते रहो। People will criticize you. Don't worry. Keep digging, keep digging. परमेश्वर आपको बोलते हैं लोग आपके पीछे मिट्टी डालेंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं फिर से कुआं खोदते रहो, खोदते रहो। I am not listening to the enemy. I am listening to the voice of God. मैं शत्रु का आवाज को नहीं सुन रहा हूँ, बल्कि परमेश्वर का आवाज को सुन रहा हूँ। I am not satisfied with small things this year. I am only satisfied when you take me to Rehoboth. मैं इस थोड़े से जगह में खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ प्रभु, मुझे रहबोत जगह चाहिए, मुझे वहां तक ले चल। How many believe that God can take you in this year? 1 year, only 1 year. आप में से कितने लोग विश्वास करते हो इस एक साल में परमेश्वर हमें ये रहबोत year. ब्लेसिंग देंगे? In your families, in your ministries, in your job, in your workplace, in your business, in your families, God, give me a Rehoboth blessing. परमेश्वर हमें हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में
हमारे जॉब में ये रहबोत ब्लेसिंग दे, ये रहबोत आशीष को भर दे प्रभु। Hallelujah. Can I do this? Can I just Hallelujah. finish this? The more you थोड़ा spread, देर में खत्म। the more you spread your hands, you're going to say, Lord, the more. Give me, give me, give me. अपने हाथों को ऐसे चौड़ा करो और बोलो परमेश्वर इतना जगह दे। Think इतना। all your plans, think all your future in your mind, and say, Lord, I need this year. अपने सारे सपनों को अपने दिमाग में लाओ और सोचते जाओ और बोलो परमेश्वर ये सारे आशीष को मुझे दे। Oh, my children, my husband, my business, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में, my मेरे जॉब के school, बारे my में, मेरे college, स्कूल my के बारे में। workplace, my business. Lord, I have plans, but I don't want to stop in Sitna. I don't want to stop in Sitna. I want to go to मैं रुकना नहीं Rehoboth. चाहता हूँ। मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास भविष्य है प्रभु, मेरे पास सपने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। मुझे वो रहबोत आशीष चाहिए, वो रहबोत आशीष चाहिए। Rima kabala rabo shekelele. See, you need to take this in your spirit rather than the message. You need to take it in your spirit. ये सारे वचन को आप अपने आत्मा में ले लो, केवल सुनो नहीं लेकिन अपने आत्मा में ग्रहण कर लो। आपको परमेश्वर वो रहबोत आशीष देना चाहते हैं। The smallness is over. The smallness is over. Smallness, the small things over. Pettiness is over. Pettiness is over. Poverty is over. एक छोटा सा जो दरिद्रता है वो चला जा चुका है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से वो दरिद्रता जा चुका है। The debt what you have is over. जो कर्जा आप लिए हो वो जा चुका है यीशु के नाम से। This year, your hand is not going to be like this. Your hand is going to be like this. इस साल आपका हाथ और ऐसा मांगने जैसा नहीं होगा, लेकिन इस साल आपका हाथ ऐसे देने जैसा होगा। Today, in the यीशु के name नाम of से। Jesus, come on. यीशु के नाम से। I am not going to hold my hand begging others. मैं अपने हाथ को ऐसे दूसरों के सामने नहीं फैलाऊंगा। Everybody, can you just do like अपने this? हाथों को सबको ऐसे आगे बढ़ाएं। Lord, this year, परमेश्वर I am not going to keep my hand बोलिए, asking. परमेश्वर मैं अपने हाथ में लोगों को ऐसे मांगूंगा नहीं। और This year, इस when I साल- go to Rehoboth blessing, इस साल जब हम रहबोत ब्लेसिंग में जाएंगे प्रभु, my hand will turn like this and my hand will give and will bless. मेरा हाथ यहाँ से ऐसे बदल जाएगा और मेरे हाथों से मैं दूसरों को दूंगा, आशीषित होऊंगा। Come on, church, believe it and चलिए say, कलीसिया ऐसे विश्वास कीजिए, my ऐसे hands will विश्वास give. कीजिए, My अपने hands हाथों will को give. ऐसे टर्न My hands will कीजिए। give. मेरा My हाथ hands will- ऐसे बदल My जाएगा। hands will not ask मेरा this हाथ year. और मांगेगा नहीं, मेरा हाथ अब से देगा। एलावारा संदोलो बोरिया। My hand will give मेरा this year. हाथ और देगा नहीं, मेरा हाथ और मांगेगा नहीं। आज के बाद मेरा हाथ अब से देगा। Last one. Can you just take your hand and put it on your head right now? क्या अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रख पाओ? सर के ऊपर रखिए I want अपने हाथों everybody. को। I just want to close with this. Just, can you come? Everybody. क्या सबको ही अपने हाथों को ऐसे क्लोज I don't know अपने when. सर I के ऊपर रखेंगे? don't know when our team is going to come back to Sambalpur. मुझे पता नहीं मेरे टीम फिर से संबलपुर कब आएंगे, But I'm praying for your next generation. लेकिन मैं आपके दूसरे पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Oh my God. अपने हाथों को अपने सर के ऊपर I रखिए। see the next generation roaming around in this place. मैं विश्वास के आंखों से देख रहा हूँ कि दूसरा पीढ़ी यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। They are in the worship now. यहाँ पे वो वर्शिप कर रहे हैं, यहाँ पे उपासना आराधना कर रहे हैं। But very soon, they're going to come back and lead from here. और Hallelujah. बहुत जल्द वो लोग आएंगे, पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करेंगे। Come on, can you just pray for your अपने children? हाथों को अपने सर के ऊपर रखिए। I pray for my children. Can you just pray for your बोलिए, children? मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray for Samara and Zion right now. प्रभु Hallelujah. मैं सरमन और एलिसा के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको तू अपने राज्य में आशीष दे, अपने राज्य में इस्तेमाल कर, अपने जीवन में। I don't want the world to take my children away, Lord. मैं नहीं चाहता हूँ कि संसार मेरे बच्चों को ले ले प्रभु। No, I want them to be in the spiritual realm. प्रभु Hallelujah. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आत्मिक
जीवन जिए और आत्मिक राज्य में बढ़े। I want them right here, Lord Jesus. प्रभु मैं अपने बच्चों को यहाँ पे देखना चाहता हूँ प्रभु। Here in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Seeing मैं the अपने miracle- बच्चों को कलीसिया में देखना चाहता हूँ, Seeing the परमेश्वर के miracles. राज्य में देखना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने बच्चों को, एलिसा एंड सरमन को प्रभु तेरे राज्य में बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, तेरे राज्य को बढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु मैं अपने बच्चों को कलीसिया में देखना चाहता हूँ। यस लॉर्ड, यस प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मेरे बच्चों को प्रभु मैं कलीसिया में देखना चाहता हूँ, संसार में नहीं बल्कि कलीसिया में देखना चाहता हूँ प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। I'm so glad that God gave that Rehoboth blessing for me. ताली बजाइए और बोले कि परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दिया है। I want to tell the church, our church is also going through transition time. Our church in Chennai, we're going through a transition time. हमारा कलीसिया जो है, लाइट जो ले दियो, हमारा कलीसिया जो है भी ऐसे बदलाव से गुजर रहा है। But I'm sure that the blessing of Rehoboth is going to stay in APC and in UPC Chennai in the year to come. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो ब्लेसिंग, जो आशीष रेहबोत आशीष है वो एपीसी कलीसिया में होगा और यूपीसी कलीसिया में होगा। Amen. Can you clap your hands and say, I क्या receive अपने it in the हाथों को name of ताली बजा के Jesus? जोर से बोल सकते हो यीशु के नाम से ऐसा होगा। I want to thank the church for this wonderful response and being with our team in whatever we did. I'm sure that God has blessed us more than God has blessed you to come here to preach the word of the Lord. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आप सबको, सबके सामने परमेश्वर का वचन बोल के, और जो कुछ भी हम लेके यहाँ से जा रहे हैं मुझे पता है वो आशीष का कारण है, वो आशीष हमें देगा। और आप सभी को, हम जो यहाँ पे रहे, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जी क्या हमारे कलीसिया, हमारे वर्शिप टीम आ जाएं, चलिए हम प्रार्थना में लगे रहें। चलिए अब खड़े रहते हैं, चलिए आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना में लगे रहें। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मुझे रेहोबोत ब्लेसिंग चाहिए प्रभु, मैं खुश नहीं हूँ प्रभु, अभी जितना भी मुझे मिला है प्रभु ये काफी नहीं है प्रभु, ये काफी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वो रेहोबोत ब्लेसिंग चाहिए, वो रेहोबोत जगह तक मुझे ले चल प्रभु, और मैं कुआं खोदते रहूंगा अपने आशीष पाने तक, अपने आशीष को पाने तक मैं कुआं खोदते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा, कुआं खोदते रहूंगा। मेरा रेहोबोत जगह मुझे चाहिए, वो रेहोबोत ब्लेसिंग चाहिए प्रभु। मैं अपने जगह को बड़ा करना चाहता हूं प्रभु, और तू मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के, अपने हाथों को परमेश्वर के ओर उठा के, आसमान के ऊपर उठा के बोलिए, लॉर्ड आई वांट दिस रेहोबोत ब्लेसिंग। प्रभु मुझे वो रेहोबोत आशीष चाहिए प्रभु, और मैं इतने में खुश नहीं हूं, इतना मेरे लिए काफी नहीं है प्रभु। आई वांट मोर, आई वांट अगेन, आई वांट द ब्लेसिंग अगेन, आई वांट द विक्ट्री अगेन, आई वांट द अनॉइंटिंग अगेन, आई वांट द टच अगेन, स्पीक टू मी अगेन। हालेलुया। प्रभु फिर से मुझसे बातें कर, प्रभु फिर से वो अभिषेक कर, प्रभु फिर से वो आशीष को डाल दे, प्रभु फिर से अपने आप को उंडेल दे, फिर से प्रभु फिर से अपने आप को उंडेल दे। ऐसे प्रार्थना करते रहिए।